JCI Nagpur hereby call this meeting to order. JCI, Junior Chamber International, is a non-profit, non-governmental, one of the most prestigious, active, successful, and glorious organization of young, active citizens whose mission is to provide development opportunities that empower young people to create a positive change. JCI is also associated with United Nations to achieve the Sustainable Development Goals. BNI, Business Network International, it is the world's largest business networking and referral organization, having over 270,000 members worldwide. Together, JCI Nagpur and BNI Nagpur brings you this powerful webinar on Atmanirbhar Bharat. We look forward to learn the concept of self-reliant nation through today's chief guest and a very dynamic speaker, Honorable Minister Shri Nitinji Gadkari. Sir is a visionary and a very eminent politician of Bharatiya Janata Party, the Member of Parliament from Nagpur, who is the current Minister for Road Transport and Highways, Minister of Shipping, and Minister of Micro, Small, and Medium Enterprises in the Government of India. As our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has the dream of self-reliant nation, let us learn and understand the insight of Atmanirbhar Bharat through a visionary man, the most eminent and a very successful cabinet minister, नितिन जी गडकरी. नितिन जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं. And I also welcome the entire audience of JCI, BNI, and millions of people who are watching us live. Welcome to the very powerful session of Atmanirbhar Bharat, brought to you by JCI Nagpur in association with BNI Nagpur. I recognize the graceful presence of our zone president, JC Valluri Srinivas sir. I welcome you, sir. I also recognize the presence of PA Ashish Ji Mukim, who is the president of BJP Economic and CSL Nagpur. I recognize the presence of a very special person, who is the national trainer of JCI India, past president and mentor of JCI Nagpur, JC Javed Khan Rana sir. I recognize the presence of Havish Selramani, who is the executive director of BNI Nagpur. Namaskar. I recognize the presence of the immediate past president of JCI Nagpur, JC Vijay Pal Dularia. धन्यवाद. इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई. लीजिए आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं आत्मनिर्भर भारत by the tiger of Vidarbha, Shan of Maharashtra and politics, Shri Nitin Ji Gadkari. Over to you, sir. थैंक यू. नमस्कार. सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा कि आप सब लोगों की कोरोना के इस संकट में आप सबकी रक्षा हो और इससे आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें. मैं मानता हूं कि ये संकट केवल हमारे देश पर नहीं है, ये पूरे विश्व पर है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस संकट के ऊपर मात करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोविड-19. 3 बातें बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो ये कि हम लोग कहीं भी जाएंगे तो 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें. जहाँ भी घर से ऑफिस से बाहर निकलते और आते समय हाथ सैनिटाइज़र से साफ करें और मास्क का उपयोग करें और हम अपनी खुद की रक्षा करें. मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये समय निकल जाएगा और हम इसमें कामयाब होंगे. हमारे देश ने 47 के बाद और 47 के पहले अनेक संकटों को झेला है. हमारी करीब 3 बार पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई है, चाइना के साथ 1 बार लड़ाई हुई है. आतंकवाद से लेकर माओवादी नक्सलवाद तक सबका हमने सामना किया है और हम विजयी हुए हैं. और मेरा विश्वास है कि ये भी लड़ाई में हम जीतेंगे और आज के इस संकट का रूपांतर हम अवसरों में करेंगे. मैं ये मानता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करके हम लोग आगे जाए और इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा
कि समाज में निराशा, नकारात्मकता, फ्रस्ट्रेशन, फियर, ये जो है इसको दूर करना होगा। पॉजिटिविटी और सकारात्मकता को जगाना होगा और फियर और डर दूर करके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम इस संकटों पर मात करके आगे जाएंगे, हम विजयी होंगे। इस प्रकार का भाव निर्माण करना होगा। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग निश्चित रूप से इस दृष्टि से कार्य ही करते होंगे और गति से करिए, ताकि समाज में आत्मविश्वास भी बढ़ना चाहिए, सकारात्मकता बढ़नी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो इस समय हमें एक काफ़ी अच्छा अवसर मिला हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर देश का, वर्ल्ड का 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है और इस समय दुनिया की हवा जिस प्रकार से चल रही है तो लोग नए ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं और इंडिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनी फॉर दैट। और इसलिए इसका उपयोग करके हम लोग किस प्रकार से सभी क्षेत्र में आगे जाएंगे, इसके लिए हमें विचार करना होगा। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड नॉलेज, इसको हम लोग नॉलेज कहते हैं, नॉलेज एज ए पावर। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। और आप जैसे युवा लोग मिलकर जब नए नए इनोवेशन में काम करते हैं, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के कारण आपको जब सक्सेस स्टोरी होती है तो स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों में भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इसके साथ चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हम सब क्षेत्र में हम आगे जाएंगे। और आगे जाने की संकल्पना का नाम ही आत्मनिर्भर भारत है। आपको पता होगा कि हमारे देश का टोटल जीडीपी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन टोटल जीडीपी में 22 से 24% है। हमारे सर्विस सेक्टर का जो है वो करीब 52 से 56% तक जाता है और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जो है वो 14 से 16% आता है। और स्वाभाविक रूप से आज हमारे देश में हमें अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो पहली बात हमको गांवों की तरफ देखना होगा। आज हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ जो है वो विशेष रूप से एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल, ये तीनों क्षेत्र में, और जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ बहुत नेग्लिजिबल है और उसी के कारण हमारा जो मेन स्टैटिस्टिक्स है वो मार खाता है। और इसलिए हमें अब डेवलप करना होगा एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और उसके साथ साथ 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को हमको कैसे डेवलप करना है, इसके लिए सोचना होगा। हमारे एमएसएमई में आज देश के जीडीपी में 30% ग्रोथ एमएसएमई से आती है और अभी एमएसएमई की व्याख्या भी हमने बदल दी है। पहले बहुत छोटी व्याख्या थी, अब काफ़ी बड़ी की है और एमएसएमई में काफ़ी लोगों को कवर किया है जिनको एमएसएमई का फ़ायदा मिलेगा। और निश्चित रूप से ये 30% ग्रोथ है, ये 50% तक आने वाले 5 साल में जाएगी, ये मेरा विश्वास है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह कि हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट जो है उसमें 48% एमएसएमई का है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज़ का। मेरा विश्वास है कि ये भी 60% तक ले जाने का हमारा टारगेट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ऐसी इकोनॉमी विकसित करनी होगी जहां हम लोगों को रोजगार निर्माण करें। नौकरी और रोजगार, इन दोनों शब्दों में फ़र्क है। अभी तक एमएसएमई ने 11 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं और आने वाले 5 साल में हमको कम से कम 5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने हैं। और ये जो जॉब क्रिएट करने, ये हमको गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण कैसे हो, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए हमारी प्रायोरिटी है। आपको पता होगा कि हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 88,000 करोड़ पिछले मार्च तक हुआ है और आने वाले समय में हम 2 साल में इसको 5 लाख करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। तो इसमें स्वाभाविक रूप से हमें इस बात का अध्ययन करना होगा कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधारित
गाँवों में, कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जंगलों में हम विकास की दिशा कैसी कर सकते हैं। मैं अभी एक मीरा कुलकर्णी करके कर्नाटक से है, उनका अभी मैंने दिल्ली में मैं उनको मिला था। वो वना अमृत करके उनके प्रोडक्ट्स हैं। वो जंगल में जो चीज़ें मिलती है उससे उन्होंने शैम्पू, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई हैं और उनके ब्रांड वो उन्होंने अमेरिका में केवल अभी बेचा तो 5,000 करोड़ में बेचा है। तो जिसको करना है वो कुछ भी कर सकता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। आज हमारे हवाई जहाज़ जो है, हमने पिछले 26 जनवरी को जट्रोफा से तैयार किए हुए बायो एविएशन फ्यूल पर हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट चलाए। मैंने इनिशिएटिव लेकर एक देहरादून से दिल्ली स्पाइस जेट का विमान 25% बायो एविएशन फ्यूल पे लाया। और अब हमारी कोशिश है कि गढ़चिरौली जैसा डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ वनवासी क्षेत्र है, वहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली जैसे नॉन एडिबल ऑयल सीड चलाए और उससे हम लोग तेल निकालकर बायो एविएशन फ्यूल अगर बनाएंगे तो ये तस्वीर बदल सकती है। आजकल बाम्बू बड़े प्रमाण पर किसान लगा रहे हैं। कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज ने अपने बॉयलर में कोयले के बजाय बाम्बू का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हमारे देश में न्यूज़ प्रिंट इंपोर्ट हो रही है, पेपर इंपोर्ट हो रहा है। करीब 40,000 करोड़ का पेपर पल्प, 35,000 करोड़ की न्यूज़ प्रिंट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे फर्नीचर के लिए लगने वाली लकड़ी करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा वो इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में वेस्ट लैंड पड़ी हुई है। हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं कि इसको हमको इंपोर्ट करें। हमारे देश को अब हम स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर इंपोर्ट के बजाय हमें एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनाना है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ऐसी अनेक टेक्नोलॉजी है कि जिसमें हम काम कर रहे हैं। अभी हनी, अभी आपको पता होगा कि अमेज़ॉन के साइट पर जो हाई एल्टीट्यूड यानी उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में जो हनी मिलता है वो 6,000 रुपये किलो है, 6,000 रुपये लीटर है। और अभी आपको मैंने मदर डेयरी को काम दिया था कि हनी का बिस्किट बनाए। हमारा गोरस पाक पर के विनोबा जी के आश्रम से वर्धा के पास बहुत सुंदर बिस्किट तैयार होता है। तो मदर डेयरी के एक्सपर्ट को मैंने वर्धा भेजा था और कहा था ये बिस्किट आप शुरू करो ताकि हमारे देश में ये जाए। अभी हमारे यहाँ नागपुर में नोगा करके कंपनी है, सरकारी है, वो बहुत अच्छा जाम बनाती है। संतरे का साल निकल कर वो भी उन्होंने जाम में डालकर बहुत टेस्टी बनाया, पर मार्केटिंग ठीक से नहीं है। अब मैंने उनको कहा कि आपके प्रोडक्ट को दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने एक योजना बनाई और उनको मदद कर रहा हूँ। इस समय नागपुर के संतरे को इस सीज़न में मेरा विश्वास है कि हम करीब 500 कंटेनर एक्सपोर्ट करने में कामयाब होंगे, ताकि हमारे यहाँ की उन्नति और विकास में हम कैसे आगे जाए। हमारे यहाँ मालगुजारी तालाब है और जहाँ फिश जो है वो फिश की इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी अब 1 लाख करोड़ की है। अब हम उसको 6 लाख करोड़ का बनाना चाहते हैं। हमारे समुद्र में हमारा 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा हमें देश को मिला है। 18% पॉपुलेशन हमारी समुद्र से रिलेटेड है। और हमारे जो मच्छीमार हैं, फिशरमैन, वो जो बोट चलाते हैं वो केवल 7-8 नॉटिकल माइल तक जाती है। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो हमने एक नया ट्रॉलर तैयार किया है जो 1.25 करोड़ का है, जिसमें बर्फ़ का कारखाना है, ऑल टेक्नोलॉजी नई सभी है और वो कम से कम 100 नॉटिकल माइल समुद्र में जाता है। अभी 7-8 नॉटिकल माइल में फिशिंग हो रहा है। अगर हमारी सरहद जो है वो 100 नॉटिकल माइल है, अगर हम 100 नॉटिकल माइल अगर हमारी ट्रॉलर जाएंगे तो हमारा फिशिंग का उत्पादन 6 गुना बढ़ेगा। 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी 6 लाख करोड़ की होगी। अगर साइंटिफिक रीति से हमारे डैम्स, हमारे तालाब, इसमें हम अगर अच्छा काम करेंगे तो ये बहुत बढ़ सकता है। हमारे प्रॉन्स जो है, जो गढ़चिरौली ज़िले में होते हैं, वो सिंगापुर में करीब उसका भाव 6,000 रुपये किलो है, हमारे यहाँ 500-600 रुपये किलो है। नागपुर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर हम सोचते कि ये इसको एक्सपोर्ट कैसे करें। दुबई में वो 4,000-4,500 किलो में भी जाते हैं स्वीट वाटर के। तो हर दिन नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किस प्रकार से हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और हमारे यहाँ जो युवा है उनको रोज़गार कैसे दें। हम नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने
तो ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए नए नए सेक्टर में इनोवेशन के साथ, रिसर्च के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे जाना है। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमको सुधारनी होगी। और ऐसे कौन से सेक्टर से जिसमें हम लोग वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मुझे पता है कि छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनको सपोर्ट करना यही हमारा काम है। आप मुझे विश्वास है कि खादी में हम लोग डेनिम बनाते हैं, जो अमेरिका में लोवाइस करके एक जीन बनाने वाली कंपनी है, और वो हमारे से पूरा डेनिम खरीद रही है। तो आज मैं सोलर चरखा कम से कम 10,000 लोगों को देना चाहता हूँ। हमने एक जीनिंग प्रेसिंग का छोटा सा घर के लाइन पर, इलेक्ट्रिक लाइन पर एक यूनिट तैयार किया है कि हमारा किसान कपास न बेचे, उसके घर में ही वो जीनिंग प्रेसिंग करे, सरकी अलग निकाले, रुई अलग निकाले, रुई की गाठी घर में बना ले और रुई अलग से बेचे और सरकी का तेल निकाल ले, और ढेप जो है वो भी किसानों को बेचे और उसका तेल भी जाकर वो बेच दे। तो हमारे वैल्यू एडिशन होगा। उसको अगर 5,000 रुपये कॉटन का मिल रहा है तो ये पूरा करने से उसको 8 से 9,000 रुपये क्विंटल तक उसका मुनाफा, उसको टर्नओवर मिल सकता है। तो धीरे धीरे वैल्यू एडिशन कैसे हो। अब टाटा ट्रस्ट के सहयोग से विशेष रूप से अमरावती ज़िले में और अकोला ज़िले में जो खारपान पट्टा है, वहाँ स्पेशली तुअर तैयार कर रहे हैं। उस टेस्टी है और उसका मार्केट वो पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की टेस्ट अलग है। तो ऐसे अनेक इनोवेटिव मॉडल्स हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर में, ग्रामीण क्षेत्र में, विलेज इंडस्ट्री के रूप में, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के रूप में हम काफ़ी काम कर सकते हैं। और ये काम करने की विजन, इसी से उत्पादन बढ़ेगा। केवल उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार केवल बढ़ेगा नहीं तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और इसलिए आज आने वाले दिशा में आप में से कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगा, कोई आईटी सेक्टर में होगा, कोई मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में होगा, कोई आप में से रेडीमेड गारमेंट में होगा, कोई केमिकल इंडस्ट्री में होगा, कोई प्लास्टिक इंडस्ट्री में होगा। आपके ही क्षेत्र में आप सोचेंगे कि क्या इंपोर्ट हो रहा है और क्या उस इंपोर्ट का विकल्प हम दे सकते हैं। मुझे याद है कि हमारे यहाँ पहले 2-3 महीने पहले हम पीपीई किट हम इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से, एक स्पेशल फ़्लाइट से लाई थी। आज फिर मैं एमएसएमई करके पीछे पड़ा। आज इतनी पीपीई किट बन रही है कि आज हमारे देश में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए आज हमारे देश में क्षमता है। आज पीपीई किट हमारी दुनिया में जा रही है। पहले सैनिटाइज़र 1200 रुपये लीटर था, इतने लोगों ने बनाना शुरू किया, अब 160 रुपये लीटर हो गया। तो आज मैंने कल ही दिल्ली में एक स्पाइस जेट के जो अजय सिंह है मालिक, उन्होंने जब ये हवाई जहाज़ बंद थे तो उनके इंजीनियर्स ने एक वेंटिलेटर तैयार किया, मैंने उसको लॉन्च किया। वो स्पाइस ऑक्सी करके उसका नाम है, और वो 55,000 रुपये का है। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ नई नई बातें लोगों ने तैयार की है। अनेक लोग उसमें आगे आ रहे हैं, और समय के साथ हमने ये प्रूव किया है कि हमारे युवा टैलेंटेड स्किल्ड मैन पावर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। आज हमारे देश में लेबर कॉस्ट सस्ती है, और हम हमारी स्ट्रेंथ का उपयोग करें और लॉजिस्टिक कॉस्ट को और कम करें और क्वालिटी को इम्प्रूव करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में अलग अलग सेक्टर में लाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए जॉइंट वेंचर करें। तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोग कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, सब सेक्टर में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। आज हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 4,85,000 करोड़ का है, और मैं आपको बता, अभी हम स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा ये टर्नओवर निश्चित रूप से ये करीब इतना बड़ा होगा कि हम वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो हर सेक्टर में हमको प्रगति और विकास करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, और देश को स्वावलंबी केवल बनाने तक ही सीमित नहीं है। तो जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करने वाले बनना।
आज बहुत से सेक्टर, अभी अगरबत्ती का काड़ी का सेक्टर था, अगरबत्तियाँ चाइना से इंपोर्ट होती, मैंने काफ़ी सीरियसली उसके पीछे लगा। अब नागपुर में कम से कम 5-6 हज़ार मशीन है जहाँ गरीब लोग अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाने लगे हैं। अब देश में उसकी इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से इस देश को इंपोर्ट को कम करने वाली, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली इंडियन इकोनॉमी को हमको आगे ले जाना है। हमारे कृषि ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास करना है। रोजगार की निर्मित किए बिना गरीबी दूर नहीं होगी, और वो गरीबी दूर करने के लिए ग्रामीण कृषि क्षेत्र में और विशेष रूप से वनवासी क्षेत्र में रोजगार निर्माण करना पड़ेगा। और हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। अभी हमारे यहाँ ताड़ोबा है, हमारे यहाँ नागपुर को टाइगर कैपिटल कहा जाता है, 350 टाइगर नागपुर के आसपास है। हम वर्ल्ड के पूरे लोगों को नागपुर में ला सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड टूरिस्ट का आकर्षण नागपुर अगर बन जाएगा तो हमारे हॉस्पिटलिटी के जो फील्ड्स है, हमारे होटल्स है, टैक्सीज है, बसेस है, कितना बड़ा लोगों को रोज़गार मिलेगा। टूरिज़्म ऐसा सेक्टर है कि जिसमें जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है 49% इन्वेस्टमेंट रोज़गार निर्माण करने के लिए खर्चा करने के लिए होती है। तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है आप जैसे लोगों को कि कहाँ इनोवेशन है, कहाँ रिसर्च करना है, कौन से फील्ड में जाना है। आपको सब बातों का पता है। और इसलिए दुनिया में आने वाले समय में हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ऐसी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेज़ी से बन रहा है कि अब नागपुर मुंबई का भी हाईवे बन रहा है, और उधर मैं नागपुर दिल्ली मुंबई दिल्ली का एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। काफ़ी आधे से ज़्यादा काम शुरू हो गया है, 2-2.5 साल के अंदर मैं पूरा करूँगा। 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई आप जा सकेंगे। अभी मैं अमृतसर से दिल्ली, अमृतसर कटरा हाईवे बना रहा हूँ श्रीनगर तक का, तो वो 4 घंटे में दिल्ली से अमृतसर जा सकेंगे। अभी दिसंबर में हम इनाग्रेट कर रहे हैं हमारे मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। अभी 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में आप मेरठ से दिल्ली आओगे। तो अब इतने बड़े प्रमाण पर रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हमारे शिपिंग पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। अभी जलमार्ग हमने गंगा में बना लिया, वाराणसी टू हल्दिया 1380 किलो जलमार्ग, मैं मंत्री था, हमने उसको बना लिया। फिर हल्दिया से पानी है समुद्र का ब्रह्मपुत्रा तक, और ब्रह्मपुत्रा को ड्रेजिंग करके वो भी बना दिया, बाराक में बना दिया, और बांग्लादेश में जाकर मुंगली पोर्ट तक ड्रेजिंग किया। और अभी वाराणसी से इलाहाबाद भी 1 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करके वो भी बना लिया है। अब इलाहाबाद प्रयागराज को हम दिल्ली से जोड़ेंगे, वो भी डीपीआर हमने बनाया। तो दिल्ली से चलने वाला पानी के ऊपर का जहाज साउथ ईस्ट एशिया तक, म्यांमार और इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना तक और नॉर्थ ईस्ट तक जा सकेगा। तो टोटल हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। तो क्या नहीं हो सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं। और वो करने के लिए सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से आगे बढ़ने की संकल्पना ही आत्मनिर्भर भारत की है। एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करने वाले लोगों को सम्मान मिलकर उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं तो गांव गरीब मजदूर किसान की पेइंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, तब उसके पास पैसा आएगा तभी बढ़ेगी। गांव सुखी जैसे स्मार्ट विलेजेस है वैसे स्मार्ट विलेजेस बनाने चाहिए। अभी रियल इस्टेट के क्षेत्र में लोग अर्बन सेक्टर में काम करते हैं, पर आप स्टडी करिए अर्बन सेक्टर से ज़्यादा इकोनॉमिक वायबिलिटी रूरल सेक्टर में है। अगर लो कॉस्ट हाउसिंग में आपने 1000 रुपये स्क्वायर फुट से कम कॉस्ट में 350-400 स्क्वायर फीट के मकान बनाए, और वो गांव में लैंड कॉस्ट सस्ती है, अगर दिए तो बड़े प्रमाण पर स्मार्ट शहर बने, वैसे स्मार्ट विलेजेस बन सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि लोगों की आवश्यकता और पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में लेते हुए ही हमें अपने बिजनेस की विजन को स्वीकारना होगा। नहीं तो आज जैसा हुआ कि रियल इस्टेट में इतने बड़े बड़े घर बन के पड़े हैं, ग्राहक नहीं है, बैंक का ब्याज भर रहे हैं, तो क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। तो डिमांड एंड सप्लाई, इसके रेशो में आपको स्टडी करना होगा कि कौन से सेक्टर में आज पोटेंशियल है, कितना है। तो मुझे लगता है कि
अध्ययन करके सभी सेक्टर को स्वयं पूर्ण करना, समृद्ध करना, संपन्न करना, यही भारत को शक्तिशाली बनाने का मार्ग है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस दृष्टि से आप सब लोग ज़रूर प्रयास करिए और हम सब लोग मिलकर स्वावलंबी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने का संकल्प करें, जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली है, जहाँ गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो, जहाँ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी हो, जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी के आधार पर समाज की विकास होगा। और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के आधार पर, जो हमारी परिवार पद्धति है, शिक्षा पद्धति, उसके आधार पर संस्कारित नया युवा भी तैयार हो, जो दुनिया पूरी तरह से हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के तरफ बड़े आकर्षण के साथ देख रही है। हमारा आयुर्वेद, हमारा योग विज्ञान दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज पूरे देश में वर्ल्ड में योग डे बनाया जाता है। अब योग का आधार लोग ले रहे हैं। आयुर्वेद हमारा पूरे दुनिया में पहुंच चुका है। ऐसे स्थिति में इसको और टेक्नोलॉजी को विकसित करते हुए हमें दुनिया में आगे जाने के लिए और आगे निकलना है। और जिस दिन हम आगे जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी नहीं रहेगी, और वही आत्मनिर्भर भारत होगा। और उसी को निर्माण करने के संकल्प में जो युवा है आप जैसे, वो अगर संकल्प करेंगे तो परिस्थिति निश्चित रूप से बदल जाएगी। देखिए, आप कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सागर बहुत बड़ा है, पर सागर में अनेक बूंद इकट्ठा होकर सागर बना है, पर उसमें एक एक बूंद ये कहेगा कि मैं इकट्ठा नहीं होऊंगा तो कभी सागर नहीं बन सकता। तो थोड़ा थोड़ा काम एक एक व्यक्ति जब करेगा तो ही देश का विकास होने वाला है। हर व्यक्ति जब आत्मनिर्भर बनेगा, हर व्यक्ति जब रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी विकसित होगी, तो निश्चित रूप से ये सपना भी पूरा होगा। और ये पूरा करने का आप लोग संकल्प करिए और पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सबको जगाइए। कोविड के संकट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोविड-19, जैसे मैंने कहा था, तो वो निश्चित रूप से अपना बचाव भी करिए, निराश मत हुई है। और सबको साथ में लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और दूसरी दो कविताएं भी मुझे अक्सर याद आती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तीसरी थी हम होंगे कामयाब। आज के वातावरण में निश्चित रूप से तीनों बातों का महत्व है। ये तीनों कविताएं हमें प्रेरणा देने वाली है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे और आप लोग भी उस दिशा में लोगों को जाने के लिए प्रेरित करोगे, इस विश्वास के साथ आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। सर, जेसीआई ये एक युवाओं की संस्था है और बीएनआई एक व्यावसायिकों की। समाज की ये दोनों क्रांति लाने के लिए बेहद जरूरी है, और आत्मनिर्भर भारत किसी क्रांति से कम नहीं। आदरणीय मंत्री जी, इस क्रांति के लिए हमें आपसे जो ऊर्जा मिलती है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रगतिशील भारत के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, और इस संकल्प में हम जेसीआई, बीएनआई तथा संपूर्ण युवा वर्ग आपके साथ है। आज जिन लाखों युवाओं ने इस कार्यक्रम को देखा और सुना होगा, मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि हमारे देश की इस वेबिनार के माध्यम से अपने आप में एक नई जोत जलाएंगे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को साकार करेंगे। हमारे साथ भावेश तैलरमानी जो बीएनआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन वाले मैं चाहूंगा भावेश जी आप अपने प्रश्न पूछें। नमस्कार। बिल्कुल अभिजीत, जो आपने बोला वो बहुत ही सही है। और मैंने नितिन जी आपके आज जो सेशन था उससे पिछले बार भी जो हमारा सेशन हुआ और इस बार भी मैंने दो चीजें बहुत अच्छी उठाई। आप दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं, एक्सपोर्ट और क्वालिटी दोनों। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि हाँ, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप इसके बारे में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मेरे जो हम क्वेश्चन लिख के लाते हैं उसमें से मैक्सिमम तो आप आंसर ऐसे ही कर देते हैं सेशन में, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है जो हम आपसे करना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी,
तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर कि जो आपने इतना, आपका जो एक एंटरप्रेन्योर जर्नी रहा है, आपका एक बिजनेसमैन का जर्नी रहा है, आप एक अपनी सबसे बड़ी लर्निंग क्या शेयर करना चाहेंगे हम सबके साथ एज एंटरप्रेन्योर्स, एज बिजनेस ओनर्स? आप अपनी सबसे बड़ी क्या लर्निंग शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो आपको कहूँगा कि लो एम इज़ क्राइम, और आप भी हम भी कुछ कर सकते हैं इस पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। अहंकार और आत्मविश्वास दो शब्दों में अंतर है। हमने अहंकारी या इगोइस्ट नहीं होना चाहिए, पर आत्मविश्वासी जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, जो रास्ते पे चलता है तो कभी फिसल भी जाता है, तो ये चलेगा ही, पर फिसल गए इसलिए चलना बंद करना ऐसा नहीं होता। चलते रहना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, तो अंतिमतः हम हमारे उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें डिमांड क्या है, लोगों की आवश्यकता क्या है, और हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, हम कौन सी चीज़ दे रहे हैं। तो लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग, अपना ट्रेडिंग, अपना दुकान चलाना होगा। अगर हमने बहुत अच्छी चीज़ तैयार की और लोगों को अगर वो नहीं चाहिए, तो लोगों का चॉइस क्या है वो हमें देखना होगा। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, मैंने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना। अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। अभी फर्नीचर बनाने के लिए लोग चाइना क्यों जाते हैं, चाइना से क्यों लाते थे? वहाँ अलग अलग डिज़ाइंस हैं, और अच्छे डिज़ाइंस है, सस्ते हैं, वो वॉल्यूम में धंधा करते हैं। हमारे एक ही बार गिराहक आया तो हम 50% मार्जिन से उसको ऐसा धुलाई कर देते हैं कि बस, कि भाई आया कि छोड़ डालना है। तो वो क्या करते हैं कि एक के गिराहक से डील करते हुए कम मार्जिन पे काम करते हैं। तो नेचुरली मैं मानता हूँ कि विश्वसनीयता, ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल इज़ द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। तो शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो लॉन्ग टर्म पर इथिक्स जो होते हैं बिजनेस के, ईमानदारी होती, क्रेडिबिलिटी होती, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल नॉट ओनली इन बिजनेस बट इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। एक आधे काम नहीं होता है तो नहीं बोलो ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं कर सकता, ये काम नहीं हो सकता है। मैं कभी कभी लोगों को, मुझे बहुत बार आते हैं लोग कि नहीं आप बोलो हो जाएगा काम। तो मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे बारे में ज़्यादा विश्वास है लोगों के मन में कि ये कुछ भी कर सकता है, जादूगर है, ये कुछ भी कर सकता है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं ताजुद्दीन बाबा थोड़ी हूँ, अंगारा फेंक दिया और आप जीत हो गए। मेरे में नहीं है क्षमता, मैं नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। तो लोगों को विश्वास नहीं होता। तो मैं अपने बारे में लोगों का विश्वास कम करना चाहता हूँ, वो ज़्यादा का हो जाएगा। तो वैसे हम लोग भी अपने बारे में लोगों में विश्वास निर्माण करें और अच्छा काम करें, कोई कठिन नहीं है। मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, पर मैं कंस्ट्रक्शन में अब देश में सबसे ज़्यादा काम मैंने किया हुआ है, क्योंकि टनेल्स, रोड, ब्रिजेस बड़े बड़े बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। तो लोग मुझे कहते हैं कि अभी ये मेरे बारे में मिस इम्प्रेशन है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का बहुत कुछ समझता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं समझता, मुझे नहीं समझता, पर मैं गो गेटर हूँ। तो मैं आपको एक कहूँगा कि जैसे टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो विजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ये है, पर मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइजेस हमारे पास नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आप ये कहेंगे कि हमारे पास भी लोग मिलेंगे, अभी सत्यनारायण नुवाल हमारे यहाँ है, उनका कितना बड़ा टर्नओवर है, डिफेंस में, एक्सप्लोजिव में काम कर रहे हैं। वो कहाँ एक्सपर्ट थे, चंद्रपुर में थे, छोटे से साइकिल पे जाते थे। तो उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को पैदा करना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी तो बाकी बातें मुश्किल है। और इसलिए हमारे संस्था, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके जैसी संस्था है,
ये एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करने के लिए भी प्रयास करें। और मुझे लगता है हमारे यहाँ कमी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर निश्चित रूप से। और ये देखो आपकी, मैं खाने का शौकीन हूँ, तो बर्डी मेन रोड पर एक गली में एक पकौड़े वाला है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी मैं 10-11 बजे का चुपचाप जाके वहाँ खड़ा पकौड़े दे के देखता हूँ, क्योंकि वो टेस्टी है। पर एयर कंडीशन रेस्टोरेंट और सब कुछ है और क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई आता नहीं होटल में। और अच्छी क्वालिटी होगी तो वो, मैं सुबह लोग फ्लाइट में तो श्रद्धानंद पेट चौक में एक पोहा बनाता है, तो उसके बाद हज़ारों लोग लाइन से खड़े रहते और पोहा ही खाते सुबह। और 5:30 बजे पोहा बनाता है तो 5:30-6 बजे लोग खाने के लिए आते हैं, महिला पुरुष आते हैं और खाते हैं वहाँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ इस क्वालिटी। देखो, चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता, और ये क्वालिटी मेंटेन करना, क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना, ये ऑनेस्टी के साथ गुडविल को तैयार करना, ये भी बिजनेस में कैपिटल निर्माण करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ये भी महत्वपूर्ण है, ब्रांडिंग। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनको अगर अप्रोप्रिएट विजन देने का काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये कामयाबी मिलेगी। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। अगेन मैंने इसमें से जो उठाया इज हाई एम इज नॉट अ क्राइम, तो बहुत बहुत अच्छी चीज हमने यहाँ से ली। एक और क्वेश्चन मेरी हमेशा से इच्छा रही है आपसे पूछने की, वो ये है कि आपने ये तो बता दिया कि आपके टॉप लर्निंग्स क्या है, और एक कौन सा आप मिस्टेक बोलेंगे अवॉइड करना चाहिए एज बिजनेस? देखिए, हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है। मेरे में भी कोई सभी अच्छे गुण थोड़ी होते हैं, मेरे भी कुछ गलतियां करता हूं मैं, गलतियां होती है। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड देन सैक देम। तो गलतियां करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां, हर व्यक्ति को एक गलती करने का अधिकार है, पर उस गलती को बार बार दोहराने का अधिकार नहीं है। और गलती करके सुधारता है आदमी, आगे जाता है, अनुभव भी सिखाता है ना। तो गलती किया है ने कोई गलत किया ऐसा नहीं होता है। आपको इनोसेंटली गलती होती है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, चलता ही है। कभी कभी असेसमेंट गलत हो सकता है। मैं 2004 में मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था, मैं रामटेक से आ रहा था। उस समय सिक्योरिटी थी, पुलिस की पायलट कार थी, फिर कमांडोज थे, फिर मेरी रेड लाइट कार थी, मेरे पीछे में 2 पुलिस की कार थी, गाड़ियाँ थी, स्पेयर गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, पुलिस वाले थे। और मेरी गाड़ी एक ट्रक पर जाके भी मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मेरे ड्राइवर को कैटरेक्ट था, पुलिस वाला था वो, रेड लाइट कार का एक्सीडेंट हुआ। वो नीचे में टायर रखा था, उसने हमें बचा लिया। तो देखो, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए ये ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक में काम कर रहे हो तो कभी भी शॉक लग सकता है, तो इलेक्ट्रिक के बटन को हाथ लगाने पहले अपना पैर कहीं तो भी लकड़ी पे भी रख दो, इतनी ही चिंता करो तो शॉक लग भी जाएगा तो कोई मरेगा नहीं, जो लकड़ी के कारण बच जाएगा। इतना ही प्रिवेंटिव मेजर होता है। तो ये तो शॉक लगते ही है, आघात होते ही है, कभी प्रॉफिट मिलता है, कभी लॉसेस होते हैं, कभी धंधा चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी हम लोग बैंक का पैसा रेगुलर दे पाते, कभी नहीं दे पाते। और ये तो चलता ही है, हर व्यक्ति के जीवन में एक साइकिल होती है। और होता ना, कभी खुशी कभी गम, कभी सूरज होता है तो कभी अंधेरा होता है, कभी खुशी होती है कभी गम होता है। तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, चलते रहना चाहिए। और जो कुछ कमियां होती है, गलतियां होती है, उसको सुधारना चाहिए और आगे जाना चाहिए। यही मार्ग होता है और यही, इसी से लोग आगे जाकर बड़ा भी बनते हैं और काम करते हैं। तो मैं भी, आज तो मैं बिज़नेस वगैरह कुछ करता नहीं, मैंने सब छोड़ दिया, पर मैंने भी गलतियाँ की। विदर्भ का विकास होना चाहिए, यहाँ के किसानों का बहुत समृद्ध होना चाहिए, इसलिए मैंने शुगर फैक्ट्री खोलने का निर्णय किया। जबकि 22 शुगर फैक्ट्री का दिवाला पिट चुका था विदर्भ में, कोई सक्सेस नहीं हुआ। पर मुझे दुर्बुद्धि हुई, क्योंकि मैं व्यवहार से ज़्यादा भावना प्रधान बना, और भावना के आधार पर मैंने निर्णय किया कि नहीं, विदर्भ के किसान पश्चिम महाराष्ट्र में जैसे संपन्न हुए वैसे विदर्भ के होने चाहिए, तो शुगर फैक्ट्री लगाई। जबकि 22 लोगों ने दिवाला पीटा था, मैंने नहीं करना चाहिए था, वो किया। अब करते करते आज मैं सक्सेस हो गया उसमें,
बहुत कठिनाइयाँ आई, पर अब फैक्ट्री सक्सेसफुल होगी, तीनों शुगर फैक्ट्री चल रही है। अड़चनें आती है, आई अभी भी आई है, पर अब वो मार्ग निकल गया, उससे बाहर निकल गए। बाय प्रोडक्ट अच्छे तैयार हो गए, उससे पैसा मिलने लगा, शुगर का घाटा उसमें निकल जाता है, तो चल गए। तो अनुभव से तो आदमी सीखता है ना, तो गलतियां करने में कोई गलती नहीं है, पर एक गलती को बार बार दोहराने वाला बड़ा व्यक्ति हमने नहीं बनना चाहिए। हाँ, आपको हर बार गलती करने का अधिकार है, पर नई गलती करो। जो एक बार गलती की उस पर रिपीटेशन मत करो, इतना ही हुआ तो ठीक है। ग्रेट। तो मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स मल्टीपल टाइम्स। तो थैंक यू सो मच। एक और Thank you. चीज जो मैं कहना चाहूंगा, आपने यहाँ पे मेंशन किया कि यू आर हेल्पिंग पीपल एक्सपोर्ट। आपने कुछ एग्जांपल्स लिए कि आप उनको एक्सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, ग्रामीण और स्टेट ये इस योजना पे काम कर रही है। देखो मैं आंध्र प्रदेश में आपको एक बात बताता हूँ। मैं जी बहुत बड़ा क्लेम भी नहीं करता हूँ, पर मेरी नीयत और इंटेंशन बहुत क्लियर और साफ है। बीच में 6 महीने पहले मैं स्वीडन गया था, तो स्वीडन जाते समय मैं दुबई उतरा, जबकि डायरेक्ट फ्लाइट था, तो भी मैं दुबई उतरा। और दुबई उतरकर मैंने ये जो हमारे आरवी में आष्टी गांव है ना, वहाँ श्रीधर ठाकरे करके है, उनका लड़का है राहुल ठाकरे, उसको बोला कि मुझे 2 बड़े पैक में संतरे दो अच्छे क्वालिटी के, और अपने साथ 2 बड़े बड़े करीब 3 डजन 4 डजन के 2 ये लेके गया साथ में। और मैंने दुबई में कुछ लोगों को बुलाया चाय पीने के लिए होटल में। अब मेरा लड़का भी वहाँ एक्सपोर्ट के काम करता है, उसका ऑफिस भी है, तो मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा ये संतरे देखो, ये टेबल फ्रूट है, नागपुर के संतरे, उनको मैंने खिलाया। फिर संतरे की बर्फ़ी भी दी उनको, जो मदर डेयरी ने बनाई थी। और संतरे खाने के बाद उन्होंने कहा कि उनको पसंद आया। अब मैंने उनको कहा कि आप ये लो, फिर उनकी कुछ कंडीशन थी, वो सब उनको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए थे, मैंने सब कराए दिए। अब हम जा रहे हैं। अभी ये नोगा के प्रोडक्ट में कोई टर्नओवर होता नहीं, मैंने उनका अभी दुबई से ऑर्डर लाए हैं। मैंने मेरे लड़के को कहा कि भाई तुम्हारा आखिर अपने यहाँ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसके लिए तुम मदद करो। अब उसके पास ऑर्डर आए हैं, क्योंकि वो काफ़ी माल वेजिटेबल फ्रूट्स और बाकी काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, तो उसने कहा कि मैं उसको बोला मदद करो इसको। तो अब उनको कुछ ऑर्डर मिले तो आगे जाएगा, उससे काम मिलेगा। तो ऐसी तो नागपुर बढ़ेगा ना। अगर नोगा चलेगा तो नागपुर में जो छोटा वाला संतरा है उससे हमारा जाम बनता है। अगर नोगा ने 1000 टन जाम बनाया तो पूरा संतरे का वहाँ उपयोग होगा। तो संतरे को, छोटे वाले संतरे को आज भाव नहीं मिल रहा है, उसको भाव मिलेगा। अगर यही संतरा दुबई जाएगा तो डॉलर में कमाई होगी। तो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करना में और यहाँ के लोगों को कैसे व्यवसाय में यश मिले, हम लोग कोशिश करते रहे। ऐसे मैं कर रहा हूँ, आप करेंगे, ऐसे करने वाले 1000 लोग हो जाएंगे तो परिस्थितियाँ बदल जाएगी। तो एक छोटा सा सजेशन है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और बीएनआई आंध्र प्रदेश के जो है, ये सब मिलके आंध्र प्रदेश का जो लोकल आर्ट है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीएनआई का प्रेजेंस जो है वो 74 कंट्रीज में है। सिमिलरली जेसीआई का भी कंट्रोल जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज में। सो वी वुड रिक्वेस्ट व्हिचएवर थिंग यू थिंक, आपको जो भी एक चीज लगती है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बीएनआई और जेसीआई आपको हेल्प कर सकता है, प्लीज लेट अस नो, वी विल बी मोर देन हैप्पी इन हेल्पिंग यू इन डूइंग दैट। ये काम आपका है। अभी वर्धा में खादी ग्रामोद्योग वालों ने मास्क बनाए और बहुत अच्छे बनाए और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा मार्केट मिला। इंडियन रेड क्रॉस ने, वर्ल्ड रेड क्रॉस ने उनके मास्क खरीदी किए। अभी मैं खादी ग्रामोद्योग से कश्मीर के बारामूला ज़िले में रुमाल बनाता हूँ, 2000 महिलाएं। अब आप एक काम करिए कि वो रुमाल जो है वो आतंकवादी क्षेत्र में जो 2000 महिलाएं बनाती है, तो एक रुमाल के उनको 3 रुपये मिलते हैं। 80 रुमाल दिन भर में बनाती है। अब आपका ब्रांडिंग रुमाल है 350 रुपये का, और ये रुमाल सेम क्वालिटी अच्छा, ये केवल 50 रुपये में एक है, 150 रुपये में 3 है। अगर ये रुमाल आप मार्केटिंग करने में मदद करोगे खादी ग्रामोद्योग को, तो वहाँ 2000 महिलाएं काम करती है रुमाल बनाने का, उनको रोजगार मिल जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है। अभी हनी का काम हम बड़े प्रमाण पे कर रहे हैं, तो आप भी आपके तरफ से ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ लो कि जिसमें से आप कैसे लोगों को दिशा दे सकते हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। आप आपके लेवल पे कुछ करिए, बाकी लोग करेंगे, मैं थोड़ा बहुत कुछ करूँगा,
ऐसे करने वाले 2-4 हजार लोग हो जाएंगे तो परिणाम एकदम अच्छा हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच नितिन जी का उसके लिए नमस्कार, और थैंक यू अभिजीत फॉर ऑर्गेनाइजिंग द